So every yoga movement basically has a movement and a stretch. So it's like you can't just, if you stretch a rubber band in just one direction, it will break. So the idea of yoga and the way it is conceptualized is that you stretch it slowly. When you stretch it slowly, if you see, the elasticity of the rubber band gets better. Then you can take it to a point that it would normally snap off at beyond a point. If you see, if you do it slowly, it will actually reach beyond that point. So that's what yoga does. So it's all about stretching and about massaging your internal vital organs. So yeah, so that's the start. So now what do I start with, guys? Should I just do a Surya Namaskar and just get it over with? Huh? It's a great posture to focus and for your legs. So it's not easy to do it. You normally always shift if you don't concentrate. So it's great for your concentration. I also like this, which is great for the legs. We're coming to the end of the Buffa yoga session. Should I just do the bridge pose? That will make great TV. See how much I'm thinking for you. This is for people who have a lot of farting problems. Yeah, this is actually one of the best asanas. My best is the Om chant, but then you all have to do Om with me. Will you all do it?
या चलो सब लोग बैठ जाओ इधर, बैठो कम ऑन, टेक द बैग आउट, यू कांट डू योगा विद द बैग. No, the whole vibration you all will feel. I want you all to see the vibration. Even if you are not in the frame, sit there. I want you all to understand the vibration of Om. Come, the meditation. बैठ जाना, tell you all what to do. अभी मैंने तुम लोगों के लिए आधा घंटा योगा किया है. Sit. Now the Om not coming in the frame, right? The O must be shorter than the M. So it's like the O must be very short, the M has to be very long. Okay, only then will you be able to strengthen your core. Alright? अभी सब लोग तो ये ऐसे तो बैठ नहीं सकते, तो जिन को ऐसे नहीं बैठना, you can even sit in Vajrasana or even a normal cross leg, it doesn't matter. Okay? So we do this. This is the index finger. Okay? That means it's trapping all your energy. The energy is not flowing out, it's trapped within you. Take a deep breath in. Then see the vibration. Okay, and then after we do 2 more, we finished 5 basically, a set of 5. After we do 2 more, you don't open your eyes, you just stay in that. And then before you open your eyes, you have to rub your hands and then put it on your eyes and then open it very slightly, cover your eyes again, and then you open it. And then you see the energy that your body creates for you. By the time it's midday, we're all so knackered in today's life. Then when you just do this, you will actually see the energy flow. Okay? I actually feel I'm taking a class, guys. That's the idea. No, that wasn't the idea. When you're saying something about yoga, it has to be, you know, it has, yeah, I'm really passionate about it. And I can't tell you the difference it made to me. So, even if you all can do this in your lives, you all will see the difference. आपको गर्मी लगी? नहीं. Okay, ready? Okay, 2 more. Take a deep breath in. Now you get out of the position and now loosen your legs.
Yoga is fun, na? Any memories from your initial yoga days? Initial yoga days. Well, I started off with doing yoga because I suffered with spondylosis, and I heard that yoga had a lot of curative and healing properties, and that's how I started with yoga. And I just started loving it because it actually made me more flexible, and I didn't know that I even had these muscles in my body. So it actually, strengthens you internally and externally, and I just absolutely loved it. As a woman, योगा करना काफ़ी मुश्किल है. लाइक उनकी लाइफ में बहुत से ऐसे प्रॉब्लम होते हैं. मेंस्ट्रुएशन ले लो आप, देन उनकी हाउस होल्ड वर्क्स होते हैं, तो योगा के लिए उन्हें कहीं ना कहीं टाइम मिल नहीं पाता है. तो आई थिंक किसी भी गोल को अचीव करने के लिए डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, और बिना मेहनत के तो वो पॉसिबल नहीं है. तो या तो आप ये सोचते हो कि आप बिना मेहनत के कुछ भी अचीव कर लोगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. सो यू हैव टू टेक आउट अ बिट ऑफ टाइम. और मुझे लगता है योग करना will be very beneficial because it's an all-in-one. It actually helps you align your body, mind and spirit together. और ये एक all-in-one therapy है. It reverses the aging process. तो बहुत सारे benefits हैं योगा के, and अगर आप वो benefits को enjoy करना चाहते हो, थोड़ा बहुत वक्त आपको निकालना पड़ेगा. As a human being, what do you prefer most, gymming or yoga? I've tried all kinds of workout regimes, लेकिन मैं ज़्यादा योगा करती हूँ बिकॉज योगा के लिए मुझे वेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती. मुझे सिर्फ एक योगा मैट की ज़रूरत पड़ती है, और द बेनिफिट्स आई हैव एंजॉयड विद डूइंग योगा ओवर द इयर्स हैज़ बीन ट्रेमेंडस. So I will continue to do yoga for the rest of my life. As everyone knows, 21st June International Yoga Day. हमने ये भी सुना है कि आप इंग्लैंड जा रहे हो टू प्रमोट योगा. तो क्या प्रिपरेशन किया? कुछ नहीं, मैं वही करूँगी लोगों के सामने जो मैं हमेशा करती आई हूँ, योगा जो मैं घर पे करती हूँ. और क्योंकि 21 जून एक ऐसा दिन है, इतने बड़े पैमाने पे मोदी साहब ने उसे इतना इम्पोर्टेंस दे के मना रहे हैं हम. आई ऑल्सो वॉन्ट टू प्ले अ कैटलिस्ट एंड वॉन्ट पीपल टू नो दैट योगा हैज़ प्लेड सच अ ह्यूज रोल इन माई लाइफ, एंड आई वॉन्ट देम ऑल्सो टू स्टेयर टूवर्ड्स डूइंग योगा. जैसे हर चीज़ घर से शुरुआत होती है, तो आप मिस्टर छोटे कुंद्रा को भी ट्रेन करते हैं? ज़रूर, मैं भी चाहती हूँ कि मैं अच्छे हैबिट्स इनकलकेट करूँ मेरे बच्चे में. तो ही हैज़ स्टार्टेड ऑफ डूइंग अ बिट ऑफ योगा, बट या आई होप ही कंटिन्यूज टू डू योगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू. 21 को वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेट हो रहा है पूरी दुनिया में. तो एज अ सेलिब्रिटी अगर आपको पूछे कि योगा से कितना इत्तेफाक रखते हैं और फिट किस तरह से रहते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखो, योगा मैंने भी किया, योगा करना चाहिए. वो बाबा भी बोलता है, रामदेव बाबा, वो सही बोलता है. योगा से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं. योगा से तुम्हारा इंटरनल जो सिस्टम होता है वो स्ट्रांग होता है. तुम्हारा फोकस, तुम्हारा मतलब एक ध्यान, जो नॉर्मली हम सोचते हुए भी या कुछ करते हुए भी हमारा ध्यान यहाँ वहाँ जाता है. योगा से वो तुम अगर प्रैक्टिस करो, पर वो 1-2 दिन 4 दिन करने से कुछ नहीं होगा. तो मतलब ये तो पब्लिक तो क्या है ना, योगा डे तो बोले आज योगा कर लो तो सब फायदा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. योगा भी अगर नहीं करेगा तो उसको करता रहना पड़ेगा कि 6 महीने में उसके फायदे उसको दिखाई देंगे. अब मालूम पड़ा 100 किलो का आदमी है, योगा ही कर रहा है, ऐसे करके ही तो वैसे नहीं होगा, धीरे धीरे होगा. पर योगा से फ़ायदा है, योगा से फ़ायदा है, 100% है. योगा ऐसी चीज़ है जिससे आदमी इंटरनली स्ट्रांग होता है. ये सबसे बड़ा मीडियम है और ये अच्छी चीज़ है. 21st of June, it's the biggest international day, Yoga Day. So what's your feeling? What did you say about it? I think Yoga Day is a great idea to just remind everyone that we have something called yoga, and it's really healthy for you. It's not just a way of exercise, but also it has a lot to do with breathing and calming your mind, and I think that's really important nowadays in our hectic world. So why don't you give yoga a chance on 21st Yoga Day, and yeah, just try it out. Are you a morning person? I am not a morning person, but I still do yoga in the morning, but my morning starts at like 10:30.
So unless I have to shoot, and it starts at like 6 in the morning. So what do you eat before yoga? You're doing a yoga. What do you eat? Yeah, actually, when I wake up, I only have like 2 big glasses of water, and then I do my yoga. And after yoga, I eat. What does yoga mean to you as a Yeah, person? correct. To me, it means a much healthier body, because I feel that, especially, you know, as an actor, you have quite extreme situations that you have to get into for movies. Not just the movie shoots of 12 hours where you have to dance continuous, but even what we had to do for Ye Jawani Hai Diwani, climb a mountain like in Kashmir or in Manali, which is like one of the 5 most dangerous trekking routes. And as an actor, you just expected, you know, to be in that kind of a healthy body to be able to go up there and shoot there and stay there for like a whole day. And I think that's where yoga again is something that just prepares you for these kind of events that will happen to you in your daily life or in your professional life. Anyone who works at an office as well, you know, you have these days where you're staring at the computer for 8 hours, and see, again, yoga will help you so much, only like to bring back your focus, to bring back that peace into your body, you know. Yeah, and of course it has that really healing effect to your joints, to your spine, to your inner organs. It's a great way to live, and I think most people who follow yoga, they also follow a very healthy diet, because you suddenly feel so refreshed and healthy that you suddenly want to go on a juice cleanse, you suddenly want to eat raw food. It's you stop eating non-veg, because it just creates that this really happy, healthy body. So basically, everyone follow any actor, female actor, male actor. Okay, that's body is very fit, and I follow that actor. Is it? See, I think there are lots of girls who have amazing bodies. Like, of course, Shilpa Shetty is still one of the best-looking bodies in our industry. Then Nargis does a lot of yoga. She looks always stunning. And I think, see, it kind of depends also what kind of a person you are. If you love yoga, or if you love like going to the gym, I think everyone has these different kind of preferences. For me, it's definitely yoga, because I'm quite lazy, and yoga is still some workout for lazy people too. And male actor? Male actor. Is it a very fit and fine? See, I think that male actors always just look fit. They like have so many muscles and so many abs, you can't count them. But I don't know if they're that fit and that flexible. I think Ritik probably is, and maybe Varun is also, because they're really good dancers, so they have a lot of stamina. It can't just be muscles then. But yeah, lots of actors become really stiff, you know, in their body language when they do too much muscle workout. They are not flexible anymore, because their muscles become like really tense when you work out. And what they have to do is stretch. So what's on in Bollywood? What's going on? For me, Yeah. well, 2 of my movies just released. I'm still bathing in happiness of my fans' response to Ishq Darya, which was my first solo lead, and I'm just so excited that people liked, you know, my performance in this film. I'm really happy. Even like hearing Mitunda's response to it, it was so amazing. So now I've started my next film, and I need to be in a very good shape for this film. That's all I can say right now. I've started my workout routine, which is a little stricter, and I think production house will announce this film by end of this month. And I'm very much into music, and since I have a little bit more time right now, I'm also focusing a little bit on my music career. I released a song about 2 years ago, and I have a couple of more songs which maybe we can release it now this summer. And I've also started my own non-profit organization which deals with fashion for a good cause basically. And I will launch this also by end of this month, and I'm very excited, because for me this is a dream come true, and I think this is the best thing I can do with all the fame which I've gathered from the movies I've done, to create awareness that there are people out there that are less fortunate, and the people who are so blessed, you know, need to pass on that blessing to everyone else. Little about your character in the announcement of it. I can only tell you that she's really fit. That's all I can tell you right now. So any plans to join Hollywood as well? Anything? Any Because projects? lots of actors. Yeah. Oh yeah, I just saw Spy, and Nargis looked so hot in this. Even Yeah. Jurassic World, Irfan Khan was a Oh yeah, what fun. Yeah, why not? See,
I'm very experimental with even with my roles. Like if there's something like an offbeat Anurag Kashyap kind of a movie, I would love to look at this. But in Bollywood, it's more like okay, she's pretty. Let's let her play the pretty role. While in Hollywood, actresses Charlize Theron or even Reese Witherspoon, who started with like a Legally Blonde movie, then does a Wild. That is what an actor is looking for, that challenging role. So in whichever kind of genre or offer comes to me, I always read the script. It's most important for me that I start with reading the script even before getting too much into the narrations and who are my co-stars. First, I want to read the script, and if the script is something that interests me, then the rest will fall into place, I think. I mean, what does women empowerment mean to you? What do you want to say? Women empowerment. Asking me for my opinion, that is women empowerment. Thank you. Thank you. Thank you so much.
dog. Open up your knees. Chin to your chest and swing side to side. And then drop your toes. Walk all the way forward. Keep the hammock of tension. Grab the right. Grab left. Walk forward. Walk forward, looking yourself forward. Take your hands up. Hands up. As you're ready, one by one. And chin up and smile. And on your forward swing, drop your toes. 2 steps forward, keep the hammock at tension. Inhale up. Exhale, slowly cross. Inhale. Exhale, maintain the flat back. Take 2 steps forward. And push your heels out. Nice. And walk all the way forward and come back. बहुत तैयार होके आया हूँ, रात भर ध्यान में था, शांत चुप, फिर मेरी तीसरी आँख खुली और आपने योगा करना स्टार्ट और फिर मैंने योगा करना शुरू कर दिया। तो खुद को फिट करने के लिए आप और क्या क्या तरीके अपनाते हैं? योगा मैं तो बहुत कुछ करता हूँ एंड ज़्यादातर फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन तो जो जिस तरह का रोल होता है, आई ट्राई टू बिकम द कैरेक्टर फिजिकली, जिसमें काफ़ी कठिनाई और कष्ट होते हैं, बट यू लिव वंस एंड व्हेन यू लव व्हाट यू डू यू आर रेडी टू बिकम व्हाटएवर द रोल डिमांड्स। बट ये पहली बार है मेरी लाइफ में जो मैं योगा जब करता हूँ मैं अपने लिए करता हूँ, किसी रोल के लिए नहीं करता, किसी इंसान के लिए नहीं करता। आई डू इट फॉर माई सेल्फ, फॉर माई सोल, फॉर माई बॉडी, फॉर माई माइंड। एंड मैं अभी भी नया हूँ, काफ़ी चीज़ें अभी भी मैं नहीं कर पाता हूँ, बट मैं यही सबको बताना चाहूँगा कि प्रयास करना, जस्ट टू कम एंड ट्राई इज़ इनफ। हर चीज़ में नंबर 1 होना ज़रूरी नहीं है, बट हर चीज़ का लाभ उठाना, उसको ट्राई करना और उसके जो अच्छी चीज़ें उनको इम्बाइब करना, उनके बेनिफिट्स को यूटिलाइज करना, रीप करना इज़ इनफ। सो योगा हैज़ बीन अ ग्रेट, doing yoga has been very beneficial for me. I'm very blessed to have a great yoga instructor, yoga teacher. He's a very good friend also, and I just think everyone should do yoga. And yoga का एक बहुत बड़ा aspect है breathing, जिससे मैं बहुत fascinated हूँ, इसलिए बार बार breathing की बात कर रहा हूँ। मुझे realize हुआ हम लोग breathe ही नहीं करते, और जो जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, the biggest truth of life is breathing. आप 3 बार गहरी सांस लीजिए, आपका posture, आपका फेस, आपके फेस मसल्स, आपके हेयर सब बदल जाएगा। सिर्फ 3 गहरी सांस, आपने सांस रोक रखी है 3 मिनट से,
बट यू नो वी ऑल हम लोग भूल जाते हैं लाइफ में, इतना एक्साइटमेंट है, इतना स्ट्रेस है, इतना हम भूल जाते हैं. सो जस्ट ब्रीदिंग. तो योगा से मैंने सीखा कि डीप ब्रीथ करो एंड उससे कितना ब्लड सर्कुलेशन होता है, माइंड काम रहता है. सो दैट इज जस्ट वन बेनिफिट ऑफ योगा. देयर इज सो मच मोर टू योगा. सो आई जस्ट होप यू ऑल कैन डू योगा एंड देयर इज अ योगा डे आल्सो कमिंग. वी कैन ऑल काइंड ऑफ एक प्रण कर सकते हैं कि हम योगा करेंगे और हमारा है जो अंग्रेज लेके चले गए हम वापस लेके आएंगे. मैं मजाक कर रहा हूँ बट या इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव यार एंड आई जस्ट होप एवरीबॉडी डज इट एंड जस्ट स्टे हेल्दी एंड हैप्पी. लेकिन आज के जो लोग हैं फिटनेस को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते. जो नॉर्मल रूटीन होता है, स्केड्यूल होता है उनका, तो फिटनेस एक तरफ से रह जाती है कहीं ना. यार देखो हर चीज़ को तवज्जो देना मुश्किल हो जाता है. हर सोसाइटी, हर देश, हर जगह की एक अपनी समस्या है, अपनी डिफ़िकल्टी है. तो कई लोग होते हैं उसमें फिटनेस को इम्पोर्टेंस देना भूल जाते हैं. एंड आई जस्ट होप दैट योगा के थ्रू लोगों को समझ में आए, क्योंकि योगा एक ही ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको कुछ ढेर सारे पैसे नहीं चाहिए. योगा एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप कभी किसी स्टूडियो में या किसी इंस्ट्रक्टर के पास नहीं जा सकते, मैं अनुग्रह है भगवान का, ऊपर वाले का मेरे ऊपर कि मेरे में है दैट आई कैन गो टू अ स्टूडियो, आई कैन गो टू अ गुड ट्रेनर. बट योगा एक ऐसी चीज़ है, आप किसी से सीख के आप अपने बिस्तर के बगल में जो 2 बाय 2 फुट जगह है वहाँ पे भी कर सकते हैं. यू नो आई मीन आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. ऑल यू नीड इज़ अ थॉट. सो आई जस्ट होप ये अवेयरनेस इंडिया में और फैले एंड इसके जो लाभ हैं हाउस वाइफ्स लोग जिनका जीवन बहुत कठिन है, मुश्किल है, टाइम नहीं है, वो भी थोड़ा टाइम निकाल सके एंड दे कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ दिस इन देयर लाइव्स एंड एवरीबडीज लाइफ गेट्स एनरिच्ड, एवरीबडी स्माइल्स एंड एवरीबडी बी हैप्पी. लाइफ में सबसे बड़ा उद्देश्य इंसान का है सांस लेना, उसके बाद हंसना. जो लोग सांस नहीं ले रहे, हंस नहीं रहे, वो नहीं जी रहे. अमित, आप योगा कितने सालों से कर रहे हैं? मुझे 1 साल हो गया योग करते हुए. एंड उससे पहले मैं भी एक जिम बॉडी था, जिम करता था, साइकिलिंग करता था, ट्रैकिंग करता था, अभी भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ. बट मैंने योगा भी अपने लाइफ में डाला है. मुझ में मेरा एक अलग तरीके का फोकस आ गया. मेरे में फोकस नहीं था. फोकस बहुत था मेरे में अटेंशन स्पैन बहुत कम था. मुझे ऐसा लगता है मेरा अटेंशन स्पैन बेटर हो रहा है. मैं स्टिफ बहुत था, मेरे में फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी आ रही है. एंड इट्स जस्ट दैट जिम में भी जाते हैं तो म्यूज़िक बज रहा है, 4 लोगों से आप बात कर रहे हैं, हे ब्रो व्हाट्स अप एंड चेक दैट गर्ल आउट, कुछ बोल रहा है, लड़की कुछ बोल रही है. आदान प्रदान बहुत है. योगा एक ऐसी चीज़ है जब आप यहाँ आते कोई आदान प्रदान नहीं है, सब आपका है, आपका ट्रेनर है, विच इज़ लाइक योर अनदर एनर्जी विच इज़ गाइडिंग यू. बहुत पर्सनलाइज होता है, तो आपको भागने की जगह नहीं मिलती. सो माइंड के जो थॉट्स होते हैं वॉन्डर करते करते वो बाहर निकलते जाते हैं. एंड एक्चुअली व्हेन यू आर एम्प्टी, दैट इज़ अ मेडिटेटिव स्टेट. सो आई कैन ऑल्सो से योगा इज़ अ मेडिटेटिव फॉर्म एज वेल. तो बॉलीवुड में सबसे फिट आपको कौन लगता है, एक एक्टर? देखिए ये जो आप लोग ने ना ये इंडिया में बहुत ये है कि फिटनेस को लेके ऐसे बड़े सवाल उठाए जाते हैं. कौन फिट है, 100 मीटर की रेस में कौन जीतेगा, यू नो किसके 6 पैक अच्छे हैं. अच्छा वो 6 पैक अच्छे तो एक्टर अच्छा है, 6 पैक अच्छे नहीं तो एक्टर नहीं अच्छा. यार ये सब फिटनेस को मेजर करना बहुत मुश्किल है. एक आदमी है जो फुटबॉल खेलता है, उसके 6 पैक्स है, रोनाल्डो है, वो फिट है और स्ट्रांग है. बट एक ऑस्ट्रेलिया में एक रग्बी प्लेयर है जो 6 फुट 2 इंच का है, 220 पाउंड का, आपको मोटा दिखता है लेकिन उसमें इतनी ताकत है कि वो 10 लोगों को उड़ा देगा. सो फिटनेस कैन नॉट बी मेजर्ड. आई थिंक फिटनेस अ स्टेट ऑफ माइंड. आप कितने बैलेंस्ड हो, यू नो आप लोगों के साथ कितना कंपैशनेट हो, कितने जेंटल हो. और आपका सवाल का अगर जवाब देना भी चाहूँ तो मुझे ऐसा लगता है अक्षय सर बहुत स्ट्रांग है, बहुत फिट है. उनका जो रिचुअल है, जो डिसिप्लिन है, उनका लाइफ का बैलेंस है. मैंने उनसे 2-3 बार हाथ मिलाया और मुझे आज तक के उस हाथ का जो प्रभाव है जो मुझे याद है. मुझे लगता है रियल स्ट्रेंथ आई थिंक उनमें बहुत है. बट अगेन हम एक्टर हैं तो हमें एक दूसरे को मैं कभी काफ़ी आर्टिकल देखता हूँ, मुझे इस बात में मज़ा आता है, माइंड मत करना. यहाँ पे फिटनेस के लिए बड़ी तुलना होती है. एक तो तुलना होनी नहीं चाहिए, दूसरी एक्टिंग है, आप एक्टिंग की बात कीजिए, यू नो आई मीन. तो एक्चुअली सवाल ये होना चाहिए कि आपको इंडिया में सबसे अच्छा एक्टर कौन लगता है, यू नो आई मीन. फिट कौन लगता है लेना तो नहीं कि हम लोग स्पोर्ट्समैन थोड़ा यार एक्टर है. मैं मजाक कर रहा हूँ, माइंड मत करना है. जैसे हम जानना चाहेंगे कि इन फ्यूचर आप भी ऐसा कुछ करना चाहेंगे या जस्ट मतलब यार पता नहीं आगे क्या होगा. अभी तो मैं अपनी फिल्मों में बहुत बिजी हूँ, मेरी पिक्चर भी रिलीज हो रही है. सो नेवर से नेवर, मैं सब कुछ करूँगा. हाँ. गुड्डू रंगीला में आप कितने फिट दिखाई देने वाले हैं? ये तो फिटनेस की पीछे पड़ा हुआ है यार. फिट कितने फिट नजर आ रहे हैं उसमें. मैं एक 90 फुट की बिल्डिंग से कूदा हूँ केबल लगा के.
तो अगर आप उसको फिट मानते हो तो मैं इतना फिट हूँ, और उसमें मैंने ढेर सारे चुटकुले सुनाए, अगर चुटकुले सुनाने को आप फिट मानते हो तो बहुत फिट हूँ। एक्टिंग पसंद आएगी तो बोल देना फिट हूँ, एक्टिंग पसंद नहीं आई बोल देना अनफिट हूँ। अरशद वारसी भी उतने ही फिट थे फिल्म में। अरशद भाई बहुत फिट है, आई थिंक अरशद भाई बहुत अमेजिंग एक्टर है, एंड उनको फिट होना, नहीं फिट होना, अनफिट होना, कोई आदमी जब उनको देखेगा या उनकी एक्टिंग देखेगा या उनका काम देखेगा, इस तरह के सवाल ही नहीं आएंगे। आफ्टर काय पो छे बैक टू बैक आपकी ये साल 3 मूवी आ रही है। हाँ, आफ्टर काय पो छे 3 साल कुछ आया भी नहीं। बैक टू बैक 3 मूवीज जी, आ रही है ये ईयर, जी। तो लाइक उसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। आई एम वेरी एक्साइटेड, यस, एंड थोड़ा एंशियस भी हूँ। आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल एंड लकी दैट आई हैव सच ग्रेट फिल्म मेकर्स. All my directors are national award winning directors. Subhas sir, Tishu sir, Timashu Dulia, then Mr. Murugadoss. I'm just very grateful that they back my talent, my enthusiasm and my energy, and they give me great roles. I've worked very hard and I just hope all my movies do well. And that's it, fingers crossed. जैसे आप हम जानते हैं कि आपने डेली सोप्स भी किए हैं। मैंने डेली सोप नहीं किए थे, आप भूल रही हैं, मैंने सिर्फ वीकली किए थे और बहुत अच्छे अच्छे शो किए थे। क्योंकि मैं रोज जब डेली सोप से नहाता नहीं हूँ तो मैं डेली सोप कैसे कर सकता हूँ? ओके, हाँ। तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या रहा आपके लिए? मेरी लाइफ में मेरी लाइफ में जब मैंने टीवी छोड़ा और मुझे लगा मुझे फिल्में करनी है, मुझे लगा तो 1-2 साल में हो जाएगा। मुझे 7 साल काम नहीं मिला, वो थोड़ा डिफिकल्ट था। फिर मुझे काय पो छे मिली, मुझे लगा काय पो छे आ गई अब तो लाइन लग जाएगी। फिर मेरे पास काम नहीं था यार इतने 1 साल पूरा, वो भी चैलेंजिंग था। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ लाइफ है, कुछ सी ना किसी प्रकार का चैलेंज आते रहेगा। रोज़ सुबह उठता हूँ, शेर की तरह दौड़ता हूँ, ओके, और राजा की तरह हंसता हूँ, एंड जस्ट रोज़ जीता हूँ जो भी मेरी लाइफ है, एंड उसी में जीता हूँ। अमित, आगे आपको कौन कौन से डिफरेंट अवतार में हम देख पाएंगे इन बॉलीवुड? देखिए, अभी मेरी काफ़ी फिल्में आ रही हैं, मैं ये इतना गारंटी कर सकता हूँ कि आपको मेरे एक रोल से दूसरे रोल में कुछ भी सिमिलर नहीं दिखेगा। मेरी वेशभूषा, आवाज़, डिक्शन, कपड़े, हेयर सब में अलग है। सो गुड्डू रंगीला में हरियाणवी हूँ। मैं तो कभी कभी मजाक में बोलता भी हूँ कि मैं रीजनल एक्टर हूँ। पहली मैं गुजराती था, इसमें हरियाणवी हूँ, दूसरी में बिहारी और पंजाबी हूँ। तिमाशु दुलिया ने मुझे और पिछाड़ दिया, उन्होंने मुझे पीरियड फिल्म में डाल दिया। गैंगस्टर हूँ। मिस्टर मुरुगदास फिल्म में मैं लवर बॉय हूँ आज का। सो आई एम जस्ट यार, बहुत अनुग्रह है ऊपर वाले का कि इस प्रकार के डिफरेंट रोल मिल रहे हैं जो मुझे चैलेंज भी कर रहे हैं और मेरी काबिलियत को सींच रहे हैं और इम्प्रूव कर रहे हैं। एंड आगे भी इसी तरह बहुत चैलेंजिंग रोल्स आई होप मुझे मिलते रहें और मैं भी खुश रहूँ और सब कुछ रहे। अमित, हर एक एक्टर का एक आइडल होता है बॉलीवुड में या हॉलीवुड में। जी। तो जब आपकी एंट्री हुई थी इंडियन सिनेमा में, तो कुछ सोचा था आपने कि ही इज़ माय आइडल एंड आई हैव टू बी? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। आई लाइक दिस यार। मुझे इंडिया में जब मैं प्लानिंग की मैंने कि मुझे फिल्में करनी है, तो मैं 2 लोगों से बहुत 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 प्रभावित हूँ, आज भी बहुत प्रभावित हूँ। एक तो है मिस्टर आमिर खान। मैं उनको बहुत बड़ा रोल मॉडल मानता हूँ, उनसे बहुत प्रेरणा लेता हूँ, उनसे बहुत इंस्पिरेशन लेता हूँ। एंड दूसरा, मैंने जब गुरु देखी मिस्टर अभिषेक बच्चन, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा। मुझे लगता है इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स हैं। जब मैंने गुरु देखी उस समय मैं स्ट्रगल कर रहा था, मुझे काम नहीं मिल रहा था, और जब काम नहीं मिलता है आदमी डाउन होता है। तो जब लगता है 2 लोग नाच रहे तो आपको लगता है मैं नाचता हूँ। फिर आप देखते हो 2 लोग किक बॉक्सिंग कर रहे हैं तो मैं अब किक बॉक्सिंग करता हूँ। फिर आप देखते हो यार ये घुड़सवारी कर रहे हैं, फिर घुड़सवारी करता हूँ। इतना कंफ्यूज हो गया ना, समझ में नहीं आ रहा था, और सुबह उठ के मुझे मन नहीं कर रहा था घुड़सवारी का। मैं बहुत बचपन में घुड़सवारी की है। जब मैंने गुरु देखी मुझे रियलाइज हुआ एक्टर को कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको जब किरदार मिलेगा आप बन जाओ। सो मैंने गुरु देखी, मेरे इट वॉज लाइक, और मेरे दिमाग में ऐसा है कि मैं एक्टर बन सकता हूँ। सो मेरे इंडिया में बहुत बड़ा फैन हूँ। बाकी बहुत एक्टर्स हैं जिनसे आप प्रेरणा लेते हैं। एंड हॉलीवुड में मैं डैनियल डे लुइस का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जब उनको स्क्रीन पे देखते हैं आपको पता ही नहीं चलता। एक्चुअली ना, आप जब लोगों को बोलेंगे डैनियल डे लुइस को कोई नहीं जानता, बट उनके पिक्चरों के नाम लेंगे, इन द नेम ऑफ माई फादर या लिंकन, तो लोगों उनके पिक्चरों के कैरेक्टर्स के नाम पता है, उनका नाम आज तक जानते ही नहीं कोई। इंडिया में बहुत कम लोग हैं दुनिया में जिनको पता है कि डैनियल डे लुइस है। आप पिक्चर का नाम बताओ तो लोगों को याद है। सो ऑफकोर्स एल पचिनो, क्रिस्टन बेल, बहुत एक्टर्स हैं। आई ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ऑल ऑफ देम। यार प्लान तो बहुत हैं, बट प्लानिंग से एंडोर्समेंट्स आती नहीं है। आई एम श्योर मेरा करियर जो है मेरा इम्प्रूव करेगा एंड ब्रांड्स को लगेगा कि मैं कर सकता हूँ। बट ये है कि मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल एंड ब्रांड इमेज बनूंगा। मैं जस्ट बिकॉज कोई पैसा दे रहा है मुझे, मैं कहीं भी आगे खड़ा नहीं हूँ।
मेरा अगला सवाल यही होने वाला था, एज अ सेलेब डू यू फील इज इट सेफ फॉर एनी सेलिब्रिटी टू एंडोर्स सम काइंड ऑफ ब्रांड? यार मैं दूसरों के लिए जवाब नहीं देता, क्योंकि हर इंसान की अपनी सोच है, हर इंसान की अपनी सोच है, अपना रास्ता है। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर कभी किसी ब्रांड को एंडोर्स करूँगा सो मैं काफ़ी छानबीन करूँगा कि इससे सोसाइटी पे क्या प्रभाव है, द इफेक्ट्स एंड द रेजिड्यू इट हैज़ ऑन पीपल, कम्युनिटी, इन्वायरमेंट, मैं इन सबको ज़रूर देखूँगा। एंड उसके बाद मुझे लगता है कि इन चीज़ों से अगर अच्छा है और मुझे भी अगर वो उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने में आपत्ति नहीं है तो मैं उसे ज़रूर एंडोर्स करूँगा। परफेक्ट। चलिए एक आखिरी सवाल, 21 जून को योगा डे है, वर्ल्ड योगा डे, जो कुछ भी आप कहना चाहेंगे व्यूअर्स को, anything? I will just say that it's a great day and I just hope you guys enjoy, just not on this day and every day of your life. Just smile, be happy, and if you can do yoga, trust me, it will change your life. Have fun, God bless. Thank you. मेरे हिसाब से योगा, खास करके आसन, हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ना ही इससे हमारा तन स्वस्थ रहता है पर बल्कि मन भी। आज हम देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को मन की भी काफ़ी प्रॉब्लम्स है, जैसे डिप्रेशन है या बहुत अकेलापन लगता है, या कभी कभी बच्चों को भी एग्ज़ाम्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा टेंशन आ जाता है। तो अगर हर कोई योगाभ्यास रेगुलरली चालू करे, अगर अपने हर दिन में थोड़ा समय आसनों को दे या आसन करते हुए बिताए, तो सिर्फ हमारा शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। सो बीइंग अ ट्रेनर, आप किस तरह योगा को फॉलो करते हैं या डेली रूटीन? मैं न्यूट्रिशन के फील्ड में काम करती हूँ, मैं डाइटिशियन हूँ और एक स्पोर्ट्स साइंस के फील्ड में भी मैं काम करती हूँ। तो योगा का बहुत सारा इन्फ्लुएंस रहता है स्पोर्ट्स में भी, फिटनेस में भी, वेट लॉस के लिए भी, और ख़ास करके डाइट में, क्योंकि आप डाइट में देखेंगे तो लोग हमेशा ऐसी सारी चीज़ें फॉलो करते हैं जो कि वो ज़िंदगी भर नहीं कर पाएंगे, चाहे वो सूप और सैलड हो या सिर्फ जूसेस पीना हो। तो योग हमें एक सेंस ऑफ बैलेंस देता है। योग हमको ये सिखाता है कि आज से हमें यही खाना चाहिए जो हम पूरी उम्र भर खा सके, और उसके वजह से हमारा वेट एक अच्छे बैलेंस में रह जाता है और हम मोटे ही नहीं होते हैं, और अगर मोटे हो गए तो जल्दी पतले हो जाते हैं, और फिर एक बार पतले हो गए तो फिर दोबारा से मोटे नहीं होते हैं। जैसे अब जो ट्रेंड चल रहा है कि जिम ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं यंगस्टर्स, तो विच इज़ मच बेटर, या जिम और योगा? जिम या योगा ये एक्चुअली कोई चॉइस ही नहीं है, क्योंकि जिम एक फिज़िकल एक्सरसाइज है और योगा एक पूर्ण फिलॉसफी है। इट्स अ कंप्लीट फिलॉसफी बाय इटसेल्फ। योगा में आप देखोगे तो पर्वतासन से लेके मत्स्यासन तक, मतलब पीक ऑफ द माउंटेन का जो टॉप रहता है उसको लेके पूरे समुंदर के गहराई तक जितना भी सारा हमको नेचर में दिखता है, वो सारा हमें योगा सिखाने की कोशिश करता है कि कैसे हमें मयूरासन में कैसे हमें पीकॉक की तरह अच्छा डाइजेशन रखना चाहिए, या कुक्कुट आसन में कैसे हमें कॉक की तरह एकदम लाइट वेट होना चाहिए, पर्वत आसन में हमें कैसे हमारी रीढ़ की हड्डी उठानी चाहिए। तो योगा में जो है नेचर का इंस्पिरेशन है। बाकी आप जिम में देखो या रनिंग में देखो या कौन से भी और योगा छोड़ के और किसी भी अगर आप फिजिकल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज को देखो, दे आर नॉट इंस्पायर्ड बाय नेचर, देयर इज़ नो फिलॉसफी, इट इज़ मोस्टली इंस्पायर्ड बाय फिजियोलॉजी एंड एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। तो वो अपनी जगह पे सही है, और हम जब योगा करते हैं तो हमें ये जानना चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा डीप एक फिलॉसफी है, तो उसे हमें उस सीरियस अप्रोच से करना चाहिए। जैसे हम सब जानते हैं करीना कपूर जी की 0 फिगर जो हमारी बॉलीवुड में है, तो उनके पीछे बहुत सी मेहनत आपने की होगी। उनकी फिल्म बजरंगी भाईजान जो आज अपकमिंग फिल्म है, तो किस तरह की ट्रेनिंग आपने उन्हें उस फिल्म के लिए दी है? ओके, करीना को हर एक फिल्म के लिए जब वो उसका डाइट प्लान करती है तो हम यही देखते हैं कि वो जहाँ पर शूटिंग कर रही है तो उसके हिसाब से उसका डाइट होता है। तो अगर वो दिल्ली में है, अगर दिल्ली में शूटिंग है तो दिल्ली के लोकल फूड के हिसाब से, जब लद्दाख में है तो लद्दाख के लोकल फूड के हिसाब से, अगर कश्मीर में है तो कश्मीर के लोकल फूड के हिसाब से। तो करीना तो यही जानती है और यही चाहती है कि मेरे खाने पीने में बिल्कुल भी कोई ड्रामा ना हो, एकदम सिंपल, सादा और अच्छा खाना हो, क्योंकि जब खाना सिंपल रहता है तभी आप अच्छे लग सकते हो। अगर खाने में आपने ज़्यादा ड्रामा कर लिया तो फिर ऑब्वियसली इन लुक्स उतना ग्लैमरस आप नहीं दिख पाते हो। बजरंगी भाईजान उनके जो लुक है
कुछ नया हमने ट्राई किया था इस फिल्म के लिए? बहुत सारे बार बहुत अच्छा दिखने के लिए कुछ नया ट्राई करने की ज़रूरत नहीं होती है। वही पुरानी चीज़ एक नए डेडिकेशन के साथ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। और करीना की सबसे ख़ास बात यही है कि वो हर एक चीज़ को उतने ही फ्रेश अंदाज से हर रोज़ उतने ही कमिटमेंट के साथ कर पाती है। 3 टिप्स ऑफ योगा आप देना चाहेंगे? 3 टिप्स ऑफ योगा कि जब आप योगा प्रैक्टिस करते हो तो हमेशा बी ऑन अ लाइट स्टमक, और अगर सुबह सुबह उठ के आप कुछ कर रहे हो तो ज़रूर कुछ फ्रूट या थोड़ा सा ड्राई फ्रूट खा के आप प्रैक्टिस करो। चाय और कॉफ़ी पी के प्लीज़ प्रैक्टिस नहीं करना। माय सेकंड टिप इज़ कि आज से आपने चालू किया योगा करना तो इमीडिएटली प्राणायाम के स्टेप पे नहीं जाना, अपने बॉडी को भी रेडी करना ताकि वो आपके ब्रेथ को सहारा दे पाए। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, योगा कैन गिव यू मच मोर देन वेट लॉस, तो वेट लॉस के बियॉन्ड भी योगाभ्यास चालू रखिए। आपके 2 बुक्स ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं, क्या थर्ड प्लान कर रही हैं? मेरा थर्ड भी बुक आ चुका है। माई थर्ड बुक इज़ कॉल्ड डोंट लूज आउट वर्कआउट एंड इट हैज़ अ फुल चैप्टर ऑन योगा। तो पूरा योगा के ऊपर एक चैप्टर है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे योगा स्कूल चूज़ करना चाहिए, कौन सी टीचर आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी, और कौन से टाइप के योगा स्कूल्स आपको अवॉइड करने चाहिए। Lastly, what are your yoga tomorrow's plan, International Yoga Day? मेरा योगा डे का यही प्लान है कि मैं आयंगर गुरुजी की स्टूडेंट हूँ, तो हमारा सबका मिलके एक बहुत बड़ा क्लास होगा NSCI मुंबई में, तो वो मैं करूँगी। फिर सुबह 11:30 बजे आई एम होस्टिंग अ ओपन डे जहाँ मैं योग और आहार का जो मिलाप है उसके बारे में बात करने वाली हूँ। दैट इज़ गोइंग टू बी एट केम्स रोड एट क्रॉसवर्ड। और सुबह उठते ही मैं हर रोज़ की तरह अपने 6 राउंड्स ऑफ सूर्य नमस्कार करूँगी। यही मेरा प्लान है योगा डे के लिए। थैंक्स। विवेक, सबसे पहले जानना चाहूँगा योगा का आपकी ज़िंदगी में आगमन कब हुआ? आई थिंक कहीं ना कहीं कई सालों से नॉन सीरियसली कभी स्कूल में कभी यहाँ कभी वहाँ योगा करते आए, लेकिन आई थिंक सीरियस प्रभाव योगा का तब पड़ा जब फिल्म्स के करते करते, एक्शन फिल्म्स करते करते, स्टंट्स करते करते बॉडी बहुत सारी इंजरीज हो गई, और इंजरीज से जिम जाया करते थे तो इंजरी और बढ़ जाती थी और दर्द शुरू हो जाता था, बॉडी बिल्कुल कड़क हो गई थी, स्टिफ हो गई थी, अकड़ने लग गई थी। सुबह उठते तो कभी गर्दन में दर्द, कभी शोल्डर में दर्द, कभी पीठ में दर्द। और तब मुझे काफ़ी लोगों ने एडवाइस किया कि योगा अगर आप शुरू करें तो योग से आपकी बॉडी में एक फ्लेक्सिबिलिटी शुरू हो जाएगी, एक सपलनेस, एक रिलैक्स्ड बॉडी बन जाएगी। और 6-7 साल से काफ़ी संयम के साथ में मैं फॉलो कर रहा हूँ। सुबह सुबह उठकर रोज़ 1 घंटे का मेरा योगा सेशन रहता है, और वो करने के बाद इतना चैन मिलता है, बॉडी इतनी रिलैक्स्ड फील करती है। क्योंकि जिम में हम जब वर्कआउट करते हैं तो एक ट्रेनिंग, मसल ट्रेनिंग का एक अलग कॉन्सेप्ट रहता है जिसका बहुत क्विक रिजल्ट मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं मिलता। और योगा का मेरे हिसाब से सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको टोनिंग और वर्कआउट भी मिलता है, साथ में आपको स्ट्रेचिंग भी मिलती है, दोनों चीज़ें, फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है आपकी। ओके, योगा की अगर बात करूँ, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जब आप योगा करते हैं तो कहीं आप रूबरू हो जाते हैं उसके बीच और अपने बीच? आई थिंक ये कहने का बढ़िया तरीका है आपका, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि योगा कहीं ना कहीं आपको अपने करीब लेके आता है। एक स्पिरिचुअल बहुत सुंदर अनुभव है योगा, अगर आप उसे सही मायने में करें। डोंट लुक एट इट जस्ट एज एन एक्सरसाइज, जो शायद काफ़ी लोग करते हैं, स्टाइलिश एंड एक ट्रेंड और फैशन हो जाता है कि इस टाइप का योगा, उस टाइप का योगा। पर आप जेन्युइन योगा अगर करने लग जाएं, एक सामूहिक, एक कंप्लीट उसका एक परिपूर्ण रूप से अगर देखें तो उसमें नॉट ओनली फिजिकल एक्सरसाइज बट मेंटल रिलैक्सेशन, डी स्ट्रेसिंग, सब कुछ उसमें आ जाता है। वो करते करते, क्योंकि आप अपनी ब्रीदिंग को फॉलो कर रहे हैं, हर स्टेप के साथ आप सांस, गहरी सांस ले रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपको अपने आप से जोड़ता है। जैसे मेरा अनुभव ये था कि मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ दर्द हो रही है या ये पेन है, यहाँ प्रॉब्लम है बॉडी में,
योगा करते करते बॉडी आपको बताने लग जाती है, कम्युनिकेट करने लग जाती है। कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा अंदरूनी तौर पर जाने लगते हैं और उसका एक एहसास, फाइनली रूहानी एहसास मिलने लग जाता है आपको। बोलिए विवेक, अगर आपने अब तक जितना भी सोशल वर्क की बात करी जाए, वह बहुत एक्टिव रहे हैं, चाहे वो कैंसर पेशेंट से जुड़ा हो, चाहे वो एड्स के से जुड़ा हो, चाहे कैंसर पेशेंट बच्चों से जुड़ा हो, स्वच्छ भारत अभियान हो मोदी जी का, और उसमें भी आपने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। और जिस तरह का योगा को लेके आजकल जो विवाद चल रहा है, जो बातें हो रही हैं, सबकी अपनी अपनी अलग राय हैं, और मोदी जी से आप, जहाँ तक मुझे लगता है, जो थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, काफ़ी करीबी रहे हैं, तो जानना चाहूँगा अब इस जो लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं योगा के बारे में, या मोदी जी ने स्वच्छ भारत शुरुआत करी और अब योगा का खास दिन बनाया जा रहा है हिंदुस्तान में, जो शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हो रहा है, इस उनके कदम को, इस पहल को क्या कहेंगे, क्या कैसे देखते हैं, हाउ डू यू सी द होल entire step, I salute our Prime Minister नरेंद्र मोदी। मुझे इतना अच्छा लगा ये महसूस करके, ये देख करके एक गर्व से छाती भर गई कि पहले प्रधानमंत्री आए हैं जिन्होंने इस तरह से हमारी सभ्यता को, हमारे योग को पूरे विश्व स्तर पर कायम किया है। आज तक हम कल्चर के इंपोर्टर रहे हैं, बाहर से हर चीज़ हम यहाँ लेके आए हैं। बुरी बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर की चीज़ें यहाँ नहीं आनी चाहिए, ठीक है, समागम अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बिना सोचे समझे, क्योंकि अमेरिका में वैलेंटाइंस डे चलता है तो हम भी यहाँ पे वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि फलाना तारीख को टीचर्स डे है तो हम भी करेंगे, फादर्स डे है तो हम भी करेंगे, मदर्स डे है तो हम भी करेंगे। हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि हमारे लिए इसके क्या मायने हैं, हमारी कल्चर में ये कैसे बैठा। पहली बार मुझे खुशी हुई कि हिंदुस्तानी प्रथा, एक हिंदुस्तानी परंपरा योग, आज उसे न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे विश्व स्तर पर, यूनाइटेड नेशंस जैसे मंच पर इतने सारे देशों को साथ में लेकर एक सामूहिक तौर पर योगा डे मनाया जा रहा है, जो इंडिया का एक कल्चरल एक्सपोर्ट रहा। ये बहुत बड़ी बात है, न सिर्फ इंडिया को बज़वर्ड बनाने में, मार्केट करने में, और लोगों की हमारे प्रति रुचि बढ़ाने में, और उनको याद दिलाने के लिए कि ये जो एक सभ्यता है, ये जो एक कल्चर है, ये जो एक परंपरा है, हिंदुस्तानी परंपरा, ये 6-7 हजार साल पहले पनप रही थी, जब वहां पर वेस्टर्न सिविलाइजेशन में कुछ भी नहीं था। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है, और इससे हमें एक सेंस ऑफ प्राइड, एक गौरव की बात है ये हमारे लिए। ये चीज लोग नहीं देख रहे हैं। मुझे लगता है कि जब स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया तो बहुत लोगों ने उसे बहुत लाइटली लिया, हंसे थे लोग उसके ऊपर, खासकर पॉलिटिकल राइवलरी जहां होती है। लेकिन जिस तरह से स्वच्छ भारत अभियान आज लोगों के जहन में बैठ गया है कि भले ही भारत एक दिन में स्वच्छ ना हुआ हो, बट लोगों की कॉन्शियसनेस में बैठ गई ये बात। आज बच्चे बोलते हैं कि नहीं, कचरा नहीं फेंकना चाहिए, कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। कोई फेंकता है तो दूसरा उसे रिमाइंड करता है। स्वच्छ भारत एक पहल रखने से पूरे भारत को प्रधानमंत्री जी ने जोड़ दिया। अब मुझे लगता है कि स्वस्थ भारत हुआ है, स्वच्छ भारत हुआ है, अब स्वस्थ भारत भी होगा, और योगा इस स्वास्थ्य में बहुत बड़ा इसका एक रोल प्ले करेगा। नमाज के भी कई ऐसे नमाज पढ़ने के दौरान बहुत बढ़िया बात कही आपने, क्योंकि कुछ ही समय पहले मैं यही बात कह रहा था कि रिलीजियस मुद्दा बनाते हुए कुछ लोगों ने कहा है कि नहीं, अगर हम मुसलमान हैं तो हम योगा नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं खुद बचपन से मेरे इतने सारे मुसलमान दोस्त रहे हैं, दोस्त भी नहीं भाई हैं मेरे, उनके घर में मैं पला बड़ा हुआ हूँ, वो मेरे घर में पले बड़े हुए हैं, और हर चीज़ साथ में की हमने। तो कभी मुझे ऐसा नहीं महसूस हुआ कि उनमें और मुझ में कोई फ़र्क आ गया क्योंकि मैं योगा कर सकता हूँ और वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने ओम कह दिया या मैंने इंशाल्लाह कह दिया तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी, कहर टूट पड़ेगी। तो आई थिंक ये सारी बातें पॉलिटिकल है। मुझे इनफैक्ट याद है कि उनके ग्रैंडफादर मुझे कहा करते थे, जो बड़े ही एजुकेटेड मुस्लिम जेंटलमैन थे, वो बताया करते थे कि जिस तरह से जब आप नमाज पढ़ते हैं तो उसके अंदर ही योगा का कि इतने सारे पोस्चर्स हैं, और वो इतनी साइंटिफिकली क्रिएटेड चीज है। अगर ओरिजिनल इस्लाम को देखा जाए तो बहुत साइंटिफिक रिलीजन है, बहुत सोच समझ के इबादत करते वक्त भी आपकी बॉडी को जिस तरह से, आपके डाइजेशन को जिस तरह से, आपकी ब्लड सर्कुलेशन को जिस तरह से फायदे मिलते हैं, वो चीज मतलब बहुत ही ग्रेट माइंड्स ने सोचकर इस चीज को साथ में एक क्रिएट किया है।
अब उस चीज को अनदेखा करते हुए पॉलिटिकल गेन के लिए छोटी बातें करना ये शोभा नहीं देता, मुझे नहीं लगता कि अच्छी बात है। ओके, योगा डे आ रहा है, लोगों से क्या कहना चाहेंगे? और उसके साथ साथ एक सवाल और करना चाहूँगा, समागम रुचि काफी बेहतरीन हिंदी होती जा रही है, आपकी शुरू से थी, तो क्या राजनीति में आने का इरादा है विवेक आपका? और मोदी जी से आप बहुत करीब, और हिंदी अच्छी हो तो राजनीति में आ जाता आदमी, ऐसा है? ठीक है। यार राजनीति के तो कोई इरादे है नहीं, लेकिन भाषा अपनी है और हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं सीखेंगे, हम नहीं सुधारेंगे तो हमारे बच्चे कैसे सीखेंगे? हमारे बच्चे फिर सिर्फ अंग्रेजी बोलेंगे और उसका फिर मजा कुछ निकल जाएगा। बॉलीवुड में है, हम हिंदी फिल्में बनाते हैं, अगर हम हिंदी को ही नहीं सराहेंगे तो एक दिन हिंदी फिल्में बनना बंद हो जाएंगी। तो रही योगा की बात, हमारे यहाँ एक ह्यूमन नेचर है जो हम हमेशा एक दिन का वेट करते हैं कि फलाने तारीख से मैं ये शुरू करूँगा, तो वो तारीख आ रही है 21 जून को। आप ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया साथ में मिलकर योगा डे सेलिब्रेट कर रही है। तो आप भी अपनी एक पहल रखिए और अपनी एक नया कदम उठाइए स्वस्थ जीवन की तरफ, एक स्वस्थ भारत और स्वस्थ विश्व की तरफ। बच्चे कितना आपके योगा में? मेरा बेटा, हाँ बेटा तो अभी 2 साल का हो गया। जब वो 1 साल का था, यकीन नहीं मानोगे आप, आ जाता था बिल्कुल, और जैसे ही मैं योगा शुरू करता था मेरे बिल्कुल बगल में शुरू कर देता था योगा करना, और उसे इतना मजा आता है। वो एक्चुअली इतनी अच्छी तरह से करता है योगा की, कभी कभी मुझे लगता है कि उसकी बॉडी रबर की बनी है जिस तरह से वो करता है, और एक एक आसन का नाम भी अब सीख गया है और किस तरह से करता है। और अगर मैं थोड़ा सा ढीला पड़ गया तो मुझे डांट भी देता है, वो तो नहीं दादा ठीक से करो, आप ठीक से करो। नौकासन उसका बड़ा फेवरेट है, बिल्कुल ऐसे ऐसे चला जाता है बिल्कुल ऊपर, बड़ा मजा आता है देखकर। प्रोफेशनल कुछ बोलना है? प्रोफेशनल फ्रंट पे क्या हो रहा है? ये बस ग्रेट ग्रैंडमास्टर की शूटिंग चल रही है और शूटिंग की वजह से 21 तारीख को नहीं जा पाएंगे दिल्ली, नहीं तो बड़ा मन था, लेकिन कर्म जो है वो सबसे बड़ा धर्म है। तो कॉम्बिनेशन शूटिंग है और गाना शूट कर रहे हैं हम लोग सब, तो योगा दिवस हम मुंबई से, फिल्म सिटी से मनाएंगे। ग्रैंड मस्ती कितनी अलग हुई पहली वाली फिल्म से? आई थिंक ग्रेट ग्रैंड मस्ती में एक कॉन्शियस एफर्ट की है इंद्र कुमार जी ने, कि जो ओरिजिनल मस्ती बनी थी जिसमें मस्ती ज़्यादा थी और बाकी सब चीज़ें थोड़ी कम थी, आई थिंक कहीं ना कहीं ग्रेट ग्रैंड मस्ती उस छवि में, उस इमेज में वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका ह्यूमर जो है थोड़ा सा है नॉटी, क्योंकि वो तो फिल्म का फ्लेवर है, लेकिन मस्ती ज़्यादा है और क्लीनर फिल्म बन रही है, बहुत मज़ेदार फिल्म बन रही है। थैंक यू।
फिजिकली फिट रहना तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज की तारीख में, क्योंकि एक सेइंग है ना, द फिटेस्ट शैल सर्वाइव, तो वो सही जाती है आज की तारीख में। जितना फिट होगा वो उतना सक्सेसफुल होगा, ये बात पक्की है। जो जितना अच्छी बॉडी और फिटनेस हासिल करेगा वो ओवरऑल उसके बहुत फ़ायदे हैं ना। आप अच्छे से जियोगे, आपको कोई बीमारी नहीं होगी, आप अपने प्रोफेशन में एक्सीड करोगे, हर फील्ड में एक्सीड करोगे। तो हर चीज़ वहीं से चालू होती है कि हेल्थ सबसे बड़ा सुख है, हेल्थ सबसे बड़ा वेल्थ है, तो हेल्थ से ही सब कुछ है मेरे हिसाब से। सर योगा की बात की जाए तो योगा कितना इम्पोर्टेंट है, ये तो है ही जी जी। बट योगा जो कि हम इंडियन छोड़ चुके हमारे कल्चर को, बट कहीं ना कहीं अब मोदी जी ने उसे कम बैक लाने की कोशिश की है। हाँ जी। आपके हिसाब से कितना इम्पोर्टेंट होगा? योगा इज सुपर यार, यानी हम लोग तो जो इतिहास में देखेंगे 5-10 हज़ार साल से योगा का फायदा उठा के ही हमारे पूर्वज पेरेंट्स यहाँ तक पहुँचे हैं। और योगा का अपना एक फ़ायदा है मेरे हिसाब से। योगा अगर आप रोज करते हैं सिर्फ 20 मिनट तो अमेजिंग है, आपको जिम जाने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, और सब कुछ ब्रीदिंग से होता है। हम सब लोग जानते हैं, साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि ब्रीदिंग ऑक्सीजन जितना अच्छे से जाएगा टोज टू हेड, उतना हेल्थ आपके साथ रहेगा। तो जो योगा में सब कुछ आ जाता है, थोड़ा सा मसल बिल्डिंग भी आ जाता है, और ओवरऑल एक कैलोरी बर्न भी आ जाता है, और एक जो पूरी हवा को ऑक्सीजन को ऊपर से नीचे रेगुलेट करना है वो भी बहुत अच्छे से आ जाता है। और हर एज के लोग कर पाते हैं, और बच्चे लोग तो नहीं करते। मैं तो सोचता हूँ बच्चों को भी कराना चाहिए, तो बचपन से शार्प माइंड रहेगा उनका। हमारे जो ओल्ड एज वाले लोग हैं वो घर बैठे अपने कंफर्ट लेवल पे वो योगा कर सकते हैं, वो कैलोरी बर्न कर सकते हैं। मेरी मॉम करती है, मेरी फैमिली में सब करते हैं, मैं भी कुछ आसन करता हूँ। उससे एक फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, स्ट्रेचिंग बॉडी की अच्छी हो जाती है। तो एक दो नहीं अनेक उसके फायदे हैं यार, सुपर्ब है योगा हम सभी जानते हैं। तो जैसे आपने बच्चों की बात की, यंगस्टर्स जो कॉलेज के बाद जिम प्रेफर ज़्यादा करते हैं, कॉलेज के बाद जिम जाना कहीं ना कहीं ट्रेंड बन चुका है जी, जिसे प्रमोशन भी किया गया, तो कहीं ना कहीं योगा को भी प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल। योगा देखिए वेट ट्रेनिंग के साथ थोड़ा सा अगर योगा अगर मिक्स हो जाए ना तो उसके रिजल्ट बहुत अमेजिंग होते हैं। फर्स्ट करो कि एग्जाम्पल करीना कपूर को मैं ट्रेन करता था, हो गया टाइम उसको, लेकिन वो 5 मिनट कार्डियो करती थी और 10 सूर्य नमस्कार करती थी, तो एक अच्छा एग्जाम्पल है। और बहुत फिट भी हो गई थी वो टशन के टाइम पे, जो 0 साइज इतना चला था। तो विदाउट एनी इंजरी आप वो कैलोरी बर्न कर सकते हैं। थोड़ा वेट ट्रेनिंग और योगा अगर मिक्स हो जाए तो जो टीनेजर लोगों को बॉडी चाहिए, जो लड़कियों को फिटनेस चाहिए या जो लीन लुक चाहिए, वो 100% योगा और थोड़ा वेट ट्रेनिंग के मिक्स मैच से सर्किट बना के बहुत अच्छा फायदा लिया जा सकता है। ऑफकोर्स कोई एक्सपर्ट होना या आपको उसका नॉलेज होना, फिर ही एक्सरसाइज करें कि कहीं इंजरी ना हो। तो हर चीज़ आज इंफॉर्मेशन नेट पे अवेलेबल है, सब अच्छे अच्छे जिम्स हैं, अच्छे लोग भी हैं, तो उनसे सीख के वो अप्रोच एक प्लानिंग करके अगर चले कोई 6 महीना साल भर मैं वहाँ पहुँचूंगा तो 10-20 किलो फैट भी उतर सकता है, अच्छी फ्लेक्सिबल बॉडी भी हो सकती है, थोड़ी लीन मसल भी आ सकती है। तो इट्स ए यूनिवर्स, इसमें सब कुछ है। तो जैसे आप कह रहे थे टीनेजर्स लोग जब यंगस्टर्स रहते हैं जिनको बॉडी बनाना रहता है, तो या वो लोग जिम जाते हैं लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी उसमें भूल जाते हैं, थोड़ी स्टिफनेस आ जाती है बॉडी में। तो थोड़ी मसाज के साथ अगर योगा करें वो तो आगे तक अच्छे से जिएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि स्टिफनेस से धीरे धीरे स्पॉन्डिलाइटिस बैक प्रॉब्लम चालू होता है। तो योगा से फ्लेक्सिबिलिटी सुपर्ब रहती है। तो या इट्स सुपर्ब यार। जैसे आपने बताया करीना कपूर जी ने पैशन के बाद 5 मिनट्स कार्डियो किया करती थी, तो 10 मिनट्स हो गया, तो वो जो 0 फिगर का रहा था कहीं ना कहीं योगा को कह सकते हैं योगा की एग्जैक्टली योगा का ही श्रेय जा सकता है, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी बना के रखा है आपकी। आप हर दिन जिम नहीं जा सकते हैं, वेट ट्रेनिंग नहीं कर सकते, लेकिन योगा आप हफ्ते में 5 से 6 दिन कर सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी जब तक नहीं रहेगी आप लोग अपने गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो तो उसमें योगा का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें ज़रूर अदा होता है डेली लाइफस्टाइल में। मैं तो बचपन से किया है, क्योंकि एक शौक था मुझे, और उससे ही मैंने मार्शल आर्ट भी अच्छा किया। तो योगा ने बहुत हेल्प किया था स्ट्रेचिंग में, फ्लेक्सिबिलिटी में। तो हाँ, उससे फ्रेशनेस आ जाती है और अच्छा लगता है। और मेरी मॉम भी बहुत करती है, मेरी वाइफ भी करती है। अभी शी वॉज प्रेगनेंट, आई हैड अ बेबी गर्ल,
सो प्रेगनेंसी के पहले भी उन्होंने योगा का काफ़ी 2 महीना सीरियसली रिलीजियसली अभ्यास किया था कि प्रेगनेंसी अच्छी हो जाए। तो टच वुड जय माता दी अच्छा हो गया। तो उस प्रेगनेंसी में भी योगा ने अच्छा हेल्प किया, तो मेरा बहुत फेथ है योगा पे, यू नो। सर आपने काफ़ी सेलेब्स को ट्रेन किया है, तो सर जब आप उन्हें डाइट बताते थे, जब बाद उन्हें डाइट, तो वो किस तरह फॉलो किया करते थे? डाइट एक मेजर रोल है अच्छी बॉडी को बनाने में। हम लोग तेल का नहीं खा सकते हैं, हम लोग शक्कर नहीं खा सकते हैं, 2 चीज़ का फॉलो करना है, जो मैं अक्सर सबको कहता हूँ, मेरे क्लाइंट्स भी वही फॉलो करते हैं। क्योंकि तेल जहाँ गर्म हो गया उसका बॉडी को, स्टमक को ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये लोग फॉलो तो करते हैं, बगैर डाइट की अच्छी बॉडी नहीं बन सकती है। जो हम लोग देखते हैं 6 पैक या 0 साइज कुछ होता नहीं है, थोड़ा डिसेंट हर जगह रहना चाहिए, यू नो, प्रोपोर्शंस रहने चाहिए। तो उसमें डाइट अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। हर 3 घंटे में कुछ खाना है, वो सबको मालूम है, मेरे क्लाइंट्स भी फॉलो करते हैं, मैं भी करता हूँ। तो बैलेंस डाइट हो, सात्विक खाना भी हो तो बेस्ट है। और हाँ, मसल हाई प्रोटीन से बनता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं प्रोटीन्स में। तो भूखा नहीं रहना है, ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना, ये सब चीज़ें रहती हैं। वो अगर इम्प्लीमेंट हो गई आपके लाइफस्टाइल में तो फिटनेस बहुत दूर नहीं है, आप 3-4-6 महीने में बहुत अच्छा फिटनेस हासिल कर सकते हैं। So, who is your favorite celebs जिन्हें मैं कह सकती हूँ आपको ट्रेन करना उन्हें बहुत पसंद है, जो आप बोले वो करे, जी। कोई ना कोई ऐसा फेवरेट होगा अब तक? बहुत लोग हैं। आपने आमिर सर को देखा था गजनी में, ही वॉज सो डेडिकेटेड, वेरी गुड। तो आई लव हिम, क्योंकि जिनमें हर चीज़, जितना दर्द भी होता था, चिल्लाते भी थे, फिर भी करते थे, क्योंकि उनको एक गोल था कि 1 साल में मेरे को बेस्ट बॉडी बनाना है। वैसे आप ऋतिक रोशन को ले लें, वो भी मेरे बहुत अच्छे क्लाइंट हैं और बहुत अच्छे दोस्त भी हैं अभी। तो या वो भी इतना सीरियसली फॉलो करते हैं अपने एक्सरसाइजेस को। सुबह वो कार्डियो के बाद थोड़ा योगा वो भी करते हैं, क्योंकि वो 8-9 फ्लोर पे जो हवा चलती है उसमें जो फ्रेशनेस मिलता है, यू नो, फ्रेश ऑक्सीजन, तो कार्डियो के बाद आपके लंग्स खुल जाते हैं, फिर आपका सक्शन पावर बहुत अच्छा हो जाता है और ऑक्सीजन अच्छे से रेगुलेट आप कर पाते हैं बहुत अच्छे लेवल पे। तो वो फिटनेस के लिए वो भी यूज़ करते हैं योगा, लेकिन वो सब फॉलो करते हैं जो एक रूल्स हैं, जो बेसिक चीज़ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों मेरे बहुत फेवरेट हैं। फिर बाकी ये दोनों सुपरस्टार हो गए, आमिर और ऋतिक, यू नो। बाकी जायद इज़ लाइक माय ब्रदर, मेरा दोस्त है बहुत अच्छा। तो मैं उसको जिम में यहाँ पे वो आते हैं तो योगा भी कराता हूँ। योगा में जो स्ट्रेचेज हैं उस पर मैं बहुत ध्यान देता हूँ। तो रानी मुखर्जी हैव ट्रेन्ड अ लॉट, तो वो भी बहुत सीरियसली योगा करती हैं। एशा देओल और हेमा जी, दे आर लाइक माई फैमिली। तो हेमा जी तो सॉलिड योगा करती हैं। मेरी ट्विन सिस्टर है, वो योगा सिखाती हैं। तो सब लोग जो मेरे पास आते हैं वो उन्हें भी सिखाती हैं। तो योगा इज ओवरऑल गुड। और जो आज बेस्ट दिख रहे हैं, बेस्ट अपने लाइफ के पोजीशन में है, सब लोग फिट रहने के लिए हर चीज़ ट्राई कर चुके हैं, लेकिन वेट ट्रेनिंग और योगा पे वो लोग स्टे करते हैं, क्योंकि वो आप हर जगह कर सकते हैं। आपको बहुत बड़े जिम की या बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं होती। जो कैलोरी बर्न करना है पर डे, रोज का हिसाब किताब, रफा दफा जो बोलते हैं, जो खाया है वो बर्न करना है, वो सब लोग करते हैं, इसलिए आज अच्छे दिखते हैं और बेस्ट दिखते हैं। ऑफ कोर्स दे आर सुपर सक्सेसफुल आल्सो। जी, ये भी कहा जाता है, कहा नहीं प्रूफ कि आप जब जिम करते हो तो आप अपने लाइफ के 10 इयर्स डिक्रीज करते हो। डिक्रीज? नहीं। एंड आप योगा करते हो तो आपकी लाइफ के 10 इयर्स बढ़ जाते हैं। तो आप कितना नहीं, देखिए क्या है, आप लॉन्जिविटी की बात करें यानी आप ज़्यादा उम्र की बात करें तो 100% जब आप फ्रेश ऑक्सीजन ले रहे हैं अंदर, और जिम से तो आपका हार्ट भी कंडीशनिंग होता है, यू नो, और अपने बहुत फ़ायदे हैं। जैसे जिसकी मसल्स होगी लेग में, उसके नी पे कभी प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि मसल्स वो शॉक ले लेती हैं हर कदम का या पूरे ज़िंदगी का। तो ये तो गलत मिथ है कि जिम से कम हो जाता है योगा से बढ़ जाता है। दोनों सेम ट्रैक पे हैं, दोनों एक में एक को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जिम अभी आया है, पहले से योगा चल रहा है हज़ारों सालों से, लेकिन जिम की अपने जो वर्जिश बोलते हैं, डंड मारना, बैठक मारना या मसल्स को स्ट्रांग रखना, वो भी उतने सालों से चल रहा है, वो भी उतना इंपॉर्टेंट है। तो उम्र तो कम नहीं होती है, मेरे हिसाब से 100% बढ़ जाती है उम्र, और वो भी 2-5 साल नहीं, 10-15 साल। और अच्छी सबसे ज़्यादा आप हेल्दी जीते हैं। किसको आज एक बेड पे जीना है, किसको हॉस्पिटल के चक्रे काटना है, किसी को नहीं।
सब आज रियलाइज कर चुके हैं कि आज जिम नहीं जाएंगे तो कल हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो ये एक अच्छी लहर है फिटनेस की, जो ट्रेंड आया है वो सुपर्ब आया है। अमेरिका में, हॉलीवुड में 20 साल पहले आया था, थोड़ा हमारे यहाँ स्लो आया है, लेकिन आ तो गया है, वो बहुत खुशी की बात है। ये सब ठीक है, बट जो यंगस्टर्स हैं उन्हें बहुत घाई होती है, बहुत जल्द है इन सब चीज़ों, तो वो बहुत से अलग अलग स्टेरॉइड्स, देन इंजेक्शन, तो ये कितना हार्मफुल है बॉडी के लिए? देखिए, फूड सप्लीमेंट्स की बात करें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो अभी वे प्रोटीन्स और ये सब अमीनो एसिड्स और ये मिलते हैं, दे आर फाइन, दे आर एब्सोल्युटली नेचुरल, नो प्रॉब्लम। स्टेरॉइड की बात करें तो वो गलत है, लेकिन डॉक्टर्स भी यूज़ करते हैं सर्टेन केसेस पे। आपको उसका एक एक्सपोजर चाहिए, आपको उसका एक्सपर्ट चाहिए, तो आप ले सकते हैं, अपने मन से तो नहीं ले सकते। और उससे भी कोई शॉर्टकट में बॉडी बन जाती है, ऐसा भी नहीं है। तो ओवरऑल देखा जाए तो फूड सप्लीमेंट्स आर फाइन। स्टेरॉइड को मोस्टली अवॉइड ही करना चाहिए, वो मेरा सजेशन है। और फूड सप्लीमेंट का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि वे प्रोटीन इज ए मील रिप्लेसमेंट। आपने एक खाना स्किप किया, आप भूखे नहीं रह सकते। आपको एक सर्टेन बैलेंस फूड को पेट में डालना है, आप अंडे का डाल लो या हर्बल लाइफ का डाल लो, ये ऑप्शन है जो अच्छे ब्रांडेड है। वे प्रोटीन विद मिनिमम फैट, यानी 2 ग्राम फैट रहता है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। तो इट्स ए मील रिप्लेसमेंट। फूड सप्लीमेंट्स आर सेफ, स्टेरॉइड्स आर बैड। तो हम आपसे 3 टिप्स जानना चाहेंगे योगा के लिए, लाइक टाइमिंग, देन कब उसे करना चाहिए, खाने से पहले, खाने के बाद। Of course. 3 बातें में टिप्स बोलने या जो ज़रूरी ख्याल रखना चाहिए कि एकदम खाली पेट अगर सुबह योगा हो तो वो बेस्ट है, उसमें आप बेस्ट बर्न करते हैं। और खाने के बाद एटलीस्ट 3 से 4 घंटा ना करें। और ऑफ कोर्स लाइट फूड होना चाहिए, यानी भगवान ने जितना हथेली दिया उतना ही पोर्शन होना चाहिए। ये हम सुनते आ रहे हैं पहले से, वो बहुत सही बात है। धीरे धीरे आदत हो जाती है, 21 दिन में बोलते हैं आदत पड़ जाती है। तो 3 बातों में ये आ गया कि आप सुबह अगर अर्ली मॉर्निंग 7-8 बजे के सनलाइट में अगर योगा कर सकते हैं टेरेस पे, तो वो बेस्ट है। और एसी में ना करें, क्रॉस वेंटिलेशन में करें, जहाँ आप फ्रेश ऑक्सीजन को इनहेल कर सकें। और तीसरा ये कहूँगा कि जिसकी जो भी आगे प्रॉब्लम हो सकती है, स्पॉन्डिलाइटिस या बैक की, वो आज अगर योगा करेंगे तो उनका एक लेवल पे स्ट्रेचिंग हो जाएगी, जिसको 2-3 साल लगते हैं एक लेवल पे पहुंचने में। तो धीरे धीरे आप वहाँ पहुँचें, और यकीन मानिए 15 से 20 मिनट बहुत होता है। और कछुआ चाल चलना है, कंसिस्टेंसी रहें, ये नहीं कि फट से पहुँचे और छोड़ दें। तो वहाँ पहुँचने के लिए जल्दी क्या कंपटीशन में तो जाना नहीं है। तो हेल्थ के लिए कंसिस्टेंसी बरकरार रहे, और ये 2-3 चीज़ फॉलो करें कि सुबह हो, सनलाइट में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, रात में भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्रेश हवा में करो, आप टेरेस पे बैठ के करो, तो वो आपको 100% 10 साल तो ज़्यादा हेल्दी जीने का मौका देगा। लास्टली मैं जानना चाहूँगी, अब किस सेलेब को आप करंटली ट्रेन कर रहे हो, लाइक उनकी आने वाली फिल्म के लिए? मैं ऋतिक रोशन को ट्रेन कर रहा हूँ, है ना, और वही बड़े एक स्टार हैं। बाकी या फिर हिज न्यू फिल्म मोहनजोदारो आशुतोष बना रहे हैं, और ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट सुपर है, और उसमें 2-3 आपको पहले पता चल जाती होगी स्क्रिप्ट से देखा, डिस्कशन तो होता है कि इसमें जो बॉडी शॉट्स हैं या कितना दमदार है, वो इज माय फ्रेंड, तो बातचीत तो होती रहती है वाइल वर्किंग आउट। तो 1-2 शेयर से भी फाइट है उसमें, और वो सीरियसली उनको बेसिकली एक्सरसाइज करने में मज़ा आता है ऋतिक रोशन को, और उनके लिए स्ट्रेस बस्टर है, उनको खुशी देता है एक्सरसाइज करना। तो हम लोग क्यों ना वो खुशी रहे, गंगा तो बह रही है, हमको भी उसमें लोटा डालो या बाल्टी डालो और नहाओ भाई रोज, है ना। तो ऋतिक रोशन ग्रेट पर्सन, और वो इतनी प्लानिंग से काम करते हैं। ये मोहनजोदारो के लिए भी बहुत मेहनत की है, और एकदम सही लग रहे हैं, बॉडी तो उनकी पहले से बहुत अच्छी है। तो बैंग बैंग में भी सुपर्ब लगी थी, इसमें भी सुपर्ब लगेगी। हर फिल्म में थोड़ा वेरिएशन रहता है बॉडी का, तो वो हर किरदार में सुपर्ब लगते हैं। तो लेट्स सी, अभी रिलीज के बाद ही समझ में आएगा कितना इम्पैक्ट आप पे पड़ा है उसका। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच।
I'm Leena Mogre. We have a brand of fitness called Leena Mogre's Fitness, specialized fitness gyms. और यहाँ पे हम हर तरह की एक्सरसाइज सिखाते हैं, whether it is cardio, whether it is functional training, whether it is kickboxing, yoga, power yoga, different types of yoga, breathing techniques, ये सब सिखाते हैं. तो that's why we call it lifestyle management, क्योंकि योगा ये फुल लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है, एक्सरसाइज ये लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है. ऐसे नहीं कि तो आप 2 महीना करो, वेट लॉस करो और फिर छोड़ दो. इट हैज़ टू बी अ वे ऑफ लाइफ. सो दैट्स व्हाट लीना मोग्रेज फिटनेस स्टैंड फॉर. और हाल ही में मैंने एक किताब लिखी है, टोटल फिटनेस द लीना मोग्रे वे, विच वॉज लॉन्च बाय माधुरी दीक्षित. सो इज डूइंग वेल इन द मार्केट. टेल अस समथिंग अबाउट योर बैकग्राउंड. आप जो लाइन है ये फिटनेस की, उसमें किस तरह से एंट्री हुई आपकी? आई एम इनटू द फिटनेस फील्ड अभी कितना 15-20 साल. I started way back 1995. That time there was nothing called as fitness. इतना serious fitness नहीं था. And that time I started an academy to train trainers. तो सबने बोला ये क्या चालू किया है, training trainers और ये सब. तो that time I said no. Lot of my friends abroad, तभी internet नहीं था and all that. They are doing aerobic instructors, jobs and they're doing very well. So why not start the academy here? तो तभी मैंने ये एकेडमी चालू की एंड वेरी फेमस स्टूडेंट्स हैव कम आउट ऑफ द एकेडमी विच आई एम वेरी प्राउड एंड दे आर ऑल्सो डूइंग वेरी वेल. तो अब तक अभी 20,000 स्टूडेंट्स या ऐसे उससे भी ज़्यादा पास हुए हैं एंड दे आर डूइंग वेल. देन आफ्टर दैट आई सेट अप अ इंटरनेशनल चेन ऑफ जिम. आई वॉज द फर्स्ट वुमन CEO. आई वॉज द फर्स्ट वुमन पर्सनल ट्रेनर इन इंडिया and the first one now to have a signature chain of gyms called Leena Mogre's Fitness. This is a 24-hour gym, which is also first time. So I like to do things first time. Ma'am, what is exactly the definition of fitness? If we ask you, what does I think fitness is a very simple thing. You get up in the morning with a smile, without aches, pains, stress. तो सब जगह होता है. Your life, if there is no stress, if you don't take it positively, you're not going to progress. So get up with a nice smile and sleep back with a smile, not saying कमर गई या ये गया, अरे कल ऐसा दिन गया, कल ऐसा. So get up with a smile and sleep with a smile. It's very easy and that's why if you're fit, you'll never put on weight. It's like preventive medicine. You'll ward off all your diseases and best thing is anti-aging. Ma'am, on 21st we are celebrating World Yoga Day. Please tell us something about what does yoga mean to you, including exercise. We all do exercise. Right. Yeah. Yoga is a main thing in our daily routine. Absolutely. Yoga is a way of life. It is life. So जैसे आप ब्रश करते हो वैसे आप एक्सरसाइज करोगे. So it has to be part of your life. It is not getting excellent in any asan, getting excellent in this. It is a way of life you imbibe. Eating good food, eating balanced food. You know, nowadays you can't say avoid मतलब alcohol बंद करो. Of course, stop smoking. You know, you should never smoke. Eat good, healthy food. So that is a way of life and think very calm, very positively because yoga helps you do that. And Surya Namaskars I think are the best form of exercise for the full body. आप जहाँ भी हो एक मैट लगा दो और सूर्य नमस्कार कर दो. So I think even 11 Surya Namaskars if you start doing and progress slowly, your body, full body gets exercise along with the mind, body and soul, जैसे बोलते हैं योगा के लिए. So I think this is the best form of exercise and that is why हमारे gyms है तो भी हम लोगों ने योगा इसमें integrate किया है because people should get the best of everything. मेरा अगला सवाल यही होने वाला था, ये जो लीना मोग्रे जिम है, उसके अंदर योगा की ऐसी कौन-कौन सी फैसिलिटीज है which you want to share with the viewers? I think see what we do is basically आप देख रहे हो बहुत सारे machines है ये है, but we have a separate room for power yoga, early morning, late evening. We have power yoga batches और मैं खुद power yoga certification कराती हूँ और वो मैं खुद students को सिखाती हूँ. It is a little adaptation of yoga. सूर्य नमस्कार में हमने 2 पोजीशन ऐड किए हैं जो है हिप हिंज और टेबल टॉप विच इज़ फॉर द कोर एंड इट इज़ अ कॉम्बिनेशन लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज जो बॉडी वेट ट्रेनिंग है एंड डिफरेंट आसन्स एंड द सूर्य नमस्कार. सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 एंड इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल और बहुत स्लो करना है, बहुत शांति से करना है, ऐसे नहीं कि लाउड म्यूजिक किया और योगा चालू किया. तो योगा यू नीड अ लिटिल रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर.
तो ये हमारे जिम के लोगों को बहुत पसंद है क्योंकि इट हेल्प्स इन बॉडी रीजुविनेशन। जितना भी आप हैवी वेट ट्रेनिंग करते हो, ये करते हो, तो इसके लिए दिस इज़ वेरी गुड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, वेरी गुड फॉर बॉडी रिकवरी। और जितना आप ज़्यादा योगा करोगे उतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनोगे, उतना आप ज़्यादा वेट लॉस भी करोगे, बिकॉज दैट्स व्हाट एवरीबडी वांट्स। बट आई फील योगा शुड बी डन मोर फॉर माइंड रिजुविनेशन, माइंड रिलैक्सेशन, ताकि आप थिंक करो पॉजिटिवली about your life, about your work, because stress is going to be everywhere. You can't say, oh, I got stress and just sit down. You've got to do something about it. So I think exercise and yoga is the best combination that we give our members, and they're really happy about it. Ma'am, you know nowadays लोग इतने busy हो गए अपनी daily life schedule में, they find a very little time to do yoga, exercise. Any particular thing you wanna give an advice to them on this particular yoga week which we are celebrating this year? The advice that I want to give, only a busy person has time for everything, and that's how he gets busy. आपकी priorities होनी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, योगा एंड एक्सरसाइज बोथ आर प्रिवेंटिव मेडिसिन। जैसे आप अपनी एक्सपेंसिव गाड़ी या कोई भी गाड़ी हो, बाइक हो, आप गराज में भेजते हो फॉर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जब भी वो नहीं होती है, या आप हर महीना गराज में भेजते हो, नहीं भेजोगे क्या होगा? इफ यू स्टॉप ब्रशिंग योर टीथ, क्या होगा? यू नो, सो वेल डीके एंड फॉल। सेम वे ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, अभी यंग एग्जीक्यूटिव्स आर डाइंग एट द एज ऑफ 40, एट द एज ऑफ 25, दे गेट हार्ट ट्रबल, क्योंकि उनकी बॉडी कंडीशन भी नहीं है, बिकॉज दे, और सबकी लाइफ एक राइट एंगल पे होगी। यू आर सिटिंग, यू आर वॉकिंग, यू आर सिटिंग ऑन द कंप्यूटर, तो आप ये फ्रेम में हो। यू आर फॉरगॉटन ट्विस्टिंग, टर्निंग, जैसे कि पुराने इसमें आप हेवी डब्बे निकालते थे, ऊपर से निकालते थे, वेल वाटर से वाटर निकलता था, यू नो, यूज टू चक्की पीसते थे, तो ये सब अभी नहीं है। इवन फॉर कर्टन यू हैव अ रिमोट, ताकि कर्टन्स ये हो जाए। So your life has become very sedentary at a right angle. That is why yoga, breathing exercises, your gym exercises, and we have tried our level best to integrate gym and yoga together for the best results. Ma'am, tell us something about Total Fitness, the book you have just recently launched with Madhuri Dusad. Total Fitness, ये जो किताब है, that is the Lina Mogre way. What I have done, it's a very basic book. लोग है ना बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि अपने को इतना वजन उठाना है, ये उठाना है, तो इसमें बहुत सारे मिथ्स जो है माइंड में लोगों के एक्सरसाइज के बारे में वो बताया है। आपका पॉस्चर एनालिसिस, मेनी पीपल डोंट एनालाइज द पॉस्चर, जैसे कि हंच बैक है, टाइट हैमस्ट्रिंग्स है, क्योंकि तुम्हारे हाथ में लोअर बैक प्रॉब्लम जो है वो पॉस्चर की वजह से होते हैं। तो अगर आप क्या करना चाहिए, विच एक्सरसाइजेस टू डू, विच आसन्स टू डू फॉर पॉस्चर। फिर आपकी असेसमेंट क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो या महिलाएं या इवन गाइस, व्हाट दे डू इज वो किसी और से रिजल्ट देखेंगे, अच्छा तुमने डाइट ये किया तो मुझे दे दो, मैं करूँगी, या मैं वही डाइट करूँगी टू सेव मनी, और जस्ट लेजी। बट रिमेंबर, आपकी बॉडी, मेरी बॉडी, इनकी बॉडी, सबकी बॉडी डिफरेंट है, आपके अलग रिक्वायरमेंट्स है, आपका लाइफस्टाइल अलग है। मैं 5 बजे उठती हूँ, आप 5 बजे सोते होंगे क्योंकि आपकी नाइट शिफ्ट रहती है। यू नो, देयर आर सो मेनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स। सो दिस इज व्हाट आई हैव रिटन इन द बुक कि यू गेट योर सेल्फ असेस्ड फ्रॉम अ फिटनेस प्रोफेशनल, गो टू अ प्रॉपर डाइटिशियन, ट्रेनर से डाइट मत लो। फिर लाइव एग्जाम्पल्स जो है, जिन्होंने 40 किलोज लूज किया है, जो थिन भी है, मॉडल्स भी है, पर वो भी वर्कआउट करती है। क्यों वर्कआउट करती है? आजकल के छोटे बच्चे जो जंक फूड खाते हैं, उन्होंने जो एक लड़की है, उन्होंने 22 किलो वेट लॉस किया है, एंड शी स्टॉप्ड ऑल जंक फूड और पूरा नया वार्डरोब लिया। सो ऑल दीज स्मॉल थिंग्स, और हर एक चैप्टर के बाद मैंने लिखा है पॉइंट्स टू पॉन्डर, मतलब वो चैप्टर के क्या 5 पॉइंट्स है जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, जो आपके दिमाग में रहने चाहिए। सो दिस व्हाट आई हैव रिटन इन द बुक, एंड इट्स अ वेरी सिंपल, जैसे मैं बात कर रही हूँ वैसे ही उसकी लैंग्वेज है, ज़्यादा साइंटिफिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत कॉमन लैंग्वेज में मैंने एक्सप्लेन किया है, और मेरा ये जो 20 साल का एक्सपीरियंस है ये पूरे बुक में डाल दिया है। सो आई होप इट डज वेल एंड एवरीबडी रीड्स इट। अच्छा, जब माधुरी जी ने ये बुक पढ़ी नहीं तो उन्होंने आपको कुछ सजेशन या एडवाइस कुछ दिया था? एक्चुअली माधुरी वॉज माई फर्स्ट क्लाइंट, हम आपके कौन के टाइम, और तभी बॉलीवुड में पर्सनल ट्रेनिंग ये चीज़ ही नहीं थी। शी वॉज द फर्स्ट वन टू हैव अ पर्सनल ट्रेनिंग, तो मैं उसके घर जाया करती थी। नाउ ऑल्सो समटाइम्स आई गो एंड ट्रेनर। तो वहाँ पे
I used to be teaching her. She loves dance, so we used to do aerobics. And at that time, she used to carry her step, music. तभी Walkman हुआ करता था, 2-in-1 हुआ करता था. She used to carry that to her sets to keep herself fit. So that's what used to happen. And जिन्होंने इन्होंने forward में लिखा है कि fitness is what has kept her now. तो जो उनका जो बेस है फिटनेस का, वो जो तैयार हुआ, एंड बिकॉज ऑफ अ लव फॉर डांस एंड पैशन फॉर डांस, शी हैज़ इंटीग्रेटेड डांस इनटू फिटनेस नाउ, एंड शी आल्सो हैज़ लॉन्च्ड हर ओन वेबसाइट डांस विद माधुरी, जहाँ पे मैं फिटनेस के लिए बोल रही हूँ कि डांसर्स ऑल्सो नीड फिटनेस. सो देर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स. और ये जो किताब उन्होंने फॉरवर्ड लिखा है उसके ऊपर यही लिखा है कि उनके लिए फिटनेस कितना इम्पोर्टेंट है, एंड शी लव द बुक, दैट्स व्हाई शी लॉन्च्ड द बुक. Ma'am, you are known to train many Bollywood celebs as well. Please tell us something about what kind of experience you have while working with them, providing some kind of advice on how to maintain your body. Tell us something. I think जो मैंने स्टार्स को ट्रेनिंग दी है, सबसे मैंने एक बेस तैयार किया उनके लिए, एक फाउंडेशन तैयार की है. लाइक आई वॉज द फर्स्ट ट्रेनर फॉर रणवीर, फर्स्ट ट्रेनर फॉर करीना कपूर. शी वॉज वेरी लेजी, I know, and look at her now, it's so proud. Vipasha, John, Deepika, all these people's first workout was with me. I'm very proud to say that. So to give them what is fitness, Rahul Khanna है, ईशा कोपीकर है, बहुत सारे, समीरा रेड्डी. She is now hooked on to yoga. Samira loves yoga, she loves power yoga. तो उनको जब भी weight loss करवाया, she changed her full lifestyle. So my job as a trainer is not just to give training, पर उनकी lifestyle change करूँ. शमिता शेट्टी, मोहब्बतें के time, I took her to a supermarket and I showed her what to buy, what not to buy, what is good for you. आपकी lifestyle कैसे change करें, यही मैं concentrate करती हूँ. और हमारी members के लिए भी हम लोग lifestyle पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, rather than इतना किलो weight loss करो, इतना किलो weight loss करो. Weight loss तो is one of the benefits. लाइफस्टाइल चेंजिंग योर लाइफस्टाइल के इतने बेनिफिट्स है. गुड स्किन, गुड हेयर, पॉस्चर, पॉजिटिव दिस थिंग, गुड बोन्स, ऑस्टियोपोरोसिस कम होता है, यू नो, एंटी एजिंग, स्ट्रॉन्ग मसल्स, स्ट्रॉन्ग कोर, आपके एब्डोमिनल्स फ्लैट रहते हैं, बैक स्ट्रॉन्ग हो जाती है, एंड मेन थिंग ऑल्सो टू मैनेज स्ट्रेस. बॉलीवुड की बात हो रही है तो मैं बात पूछना चाहूँगा, बॉलीवुड में ऐसे कौन से एक्टर और एक्ट्रेस हैं जो जिसकी आपको फिटनेस या फिजिक बहुत काफ़ी पसंद आई एंड यू वांट टू ट्रेन देम इन सम वे और द अदर? I think all of them I have trained now, and but specifically this new generation if you talk about. New generation, I think Shraddha Kapoor is very good. She loves to exercise, और उनकी जो अभी आई है, उनको तो मैंने ग्रो अप होते हुए देखा है. When she was like 1 year, 2 year old, तब से मैंने उनको देखा है, and very sweet, very good girl. तो उनको I would love to train her. Then there's Varun Dhawan. So all these people, Siddharth, Aditya Roy Kapoor. Aditya Roy Kapoor भी यहाँ आया करते थे पहले. So I think ये जो young generation है, they are already into fitness. उनको मालूम है कि अगर हम fit रहेंगे तो we can work better, we can improve our work capacity. यही lifestyle management करता है, आपकी work capacity बढ़ाता है. So whatever you are working hours, you should be able to work and yet get up the next day in the morning and do the same work again. On 21st day as yoga day we are celebrating, कुछ खास चीज़ जो viewers को बताना चाहेंगे, any motivating word, simple which remedy which they can just follow it at a particular home, ऐसे कुछ भी जो भी चीज़ आप कहेंगे. I think अगर weight loss करना है तो this is what I have learned from the PM's yoga instructor, जो स्वामी विवेकानंद के ट्रस्टी है, उनसे, योगेंद्र जी. तो somebody asked him a question कि weight loss करने के लिए क्या करना पड़ेगा. So he said breathe through your right nostril 21 times before your lunch, half an hour, 20 minutes before. So I think this is what I would like to say. And do Surya Namaskar every day, because ये जो सूर्य नमस्कार है, ये सन से आप एनर्जी लेते हो. So you are totally energized. और आप में जो एनर्जी आती है ऑन एम्प्टी स्टमक जब भी आप सूर्य नमस्कार करते हो, तभी ये जो सन, इट एल्यूमिनेट्स द होल वर्ल्ड, इट गिव्स यू एनर्जी. तो वही एनर्जी आप में आ जाती है. सो आई थिंक एंड बिकॉज ऑफ दैट आपकी एरोबिक, आपकी स्ट्रेंथ, आपका कोर, everything becomes strong, and even your skin, and you glow all the time, and your work capacity increases. The way of looking at life is very positive. Women empowerment का कितना इम्पैक्ट आता है? Women empowerment is, I think there is no difference between man and a woman. Work के या आप your work should talk. You know,
बट येस विमेन एम्पावरमेंट इज़ नीडेड नाउअडेज. जितने भी लेडीज़ है दे फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर होम, इन देयर लाइफ, एट वर्क प्लेस, सेक्शुअल असॉल्ट, सेक्शुअल हैरेसमेंट. यू शुड बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन. और आप खुद मैसेज दो सामने वाले को कि बी केयरफुल. दे तो you know, you have to be very strong, and I think every woman should help another woman, whatever the problem may be. अगर women only don't help women, and जो फीमेल फीटिसाइड है, मेरे लड़के ने अर्जुन मोगरे, उन्होंने एक छोटी फिल्म बनाई है ऑन फीमेल फीटिसाइड फॉर एन NGO. सो फीमेल इट्स वेरी सैड कि आपको सबसे सुंदर बहू चाहिए और आप खुद की बेटी को मार डालते हो. So that's the irony of India, and I think that should be. It will take a while, क्योंकि mother-in-laws ही खुद अपने daughter-in-laws को ये करती है. तो grassroots level पे बहुत ही improvement होना चाहिए, and I would love to help in any way. And I do help. छोटे छोटे cases होते हैं मेरी तरह से, मैं उनको मदद करती हूँ. कैसे करते हैं? That we sit and sort out. But I feel every woman should be strong internally और खुद के decisions खुद लो and stand up for yourself. Yeah, I'm writing one book in Marathi. जिसमें मेरी journey जो है, what are my ups and downs, what have I gone through, how did I come up. लोगों को पता, you know, जैसे you're the first woman, 20 years आप survive हुई हो, so it was not easy. तो वो दैट आई एम पेनिंग डाउन कि हाउ आई केम अप, क्या क्या किया. Now I'm 53 and yet I feel I have to do a lot of work in fitness. Ma'am, you have been training many Bollywood celebs as you just told. ये जो 6 और 8 packs का जो ये आया है पूरा, तो do you feel is it safe for a celebrity? I think ये जो 6 और 8 पैक ना मीडिया ने खुद क्रिएट किया. See what happens, the 6 and 8 pack is they make it for their role and it's not very healthy. ये इजीली अटेनेबल नहीं है, इसको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, नंबर 1. नंबर 2, आपको याद रखना चाहिए कि 6 and 8 पैक इज़ वेरी अनहेल्दी टू मेंटेन, क्योंकि आपकी बॉडी फैट परसेंटेज बहुत कम होनी चाहिए. आपको भी 6 पैक है, मेरे को भी 6 पैक है, तो जब तक वो फैट निकल ना जाए वो दिखेंगे नहीं. एंड फॉर अ वुमन ऑल्सो इट्स वेरी अनहेल्दी. अगर आप बहुत अपना फैट लेवल कम करो, पर इतना भी मत रखो कि आप मोटे हो जाओ. और इवन फॉर मेन the percentage fat has to come down, but to maintain that it's very difficult. And I think ये जो रोल के लिए करते हैं, पर्टिकुलर रोल के लिए, वहाँ पे लाइट्स होते हैं, कैमराज होते हैं, एंगल्स होते हैं, which it gets more and more enhanced. तो ये आपको याद रखना है. Just don't go 6 pack करके, it's quite unhealthy. Advice जो बॉलीवुड को आप देना चाहिए? बॉलीवुड, I think आजकल बॉडी इज़ द मेन थिंग इन बॉलीवुड. एवरीबडी इज़ इन द जिम. तो ये फुल पैकेज उनका बन गया है, लुक, स्टाइलिंग, बॉडी. तो एक्टिंग भी, आई थिंक दे शुड बी मोर ऑफ एक्टिंग ऑल्सो, विच नाउ आई थिंक पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग. अदरवाइज इट्स नॉट ओनली बॉडी, बट येस व्हेन यू एक्सरसाइज द हेल्दी वे. शॉर्ट टर्म गोल्स मत देखो, क्योंकि लॉन्ग टर्म आपको यहाँ पे रहना है. जैसे कि माधुरी दीक्षित है, I mean, you know her age and she's so brilliant, she's so good. उनकी एनर्जी लेवल हाई है. सो जस्ट डोंट सी नेक्स्ट 5 years. अब अपनी पूरी ज़िंदगी देखो और स्टीरॉइड्स ये सब यूज़ बंद करो. ओके, एंड ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी. मैम एक लास्ट सवाल, 24 जून को जैसे मैंने कहा कुछ अपने इन योर ओन लिटिल वर्ड्स व्हाट यू वांट टू से टू ऑल to everybody. 21st, this thing is the yoga day. 21st June is the World Yoga Day. So come out in huge numbers, spread the message of yoga. It's our Indian ancient tradition which is adapted all over the world, and very sad that they are coming and teaching us the importance of yoga. So remember, it is our tradition, our Surya Namaskar, our asanas, which is 300, 400, 500 years old. It is so ancient. Don't forget yoga. Come out in huge numbers and support the World Yoga Day on 21st June. The Prime Minister's very good initiative.